Good morning, all. Myself, Dr. Rajiv Goyal, welcome you all on the next lecture on the operating system. And today's we will discuss about the CPU scheduling. In today's lecture, we will discuss about the basic concepts of the CPU scheduling. What are the different scheduling criteria? What are the different algorithms for the scheduling criteria and multiprocessor scheduling? The objective of today's lecture is to introduce the CPU scheduling, which is the basis for the multi प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो डिफरेंट टाइप के मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें सीपीयू शेड्यूलिंग के इंट्रोडक्शन हम देंगे। टू डिस्क्राइब वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के डिफरेंट टाइप के जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू डिस्कस इवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम and to examine the scheduling algorithm of several operating systems. Now the basic concept of CPU scheduling. The basic concept of CPU scheduling is to maximize the CPU utilization obtained with the multi-programming. For example, let this one is a uh, example of a multi-programming operating system in which we first load, store and store read from the file, and this one is done with the CPU burst, and after that IO means input output request comes, so the process waits and it is known as the IO burst, and during that time the CPU stores increment index and write to the file, and this is the CPU burst. Again it will wait for the IO, that it is a IO burst. Then it again loads and store and read from the file, that is the CPU burst. In this way the CPU burst and the IO burst cycles concurrently moves in a operating system. CPU burst, CPU and IO burst cycle. Process execution consists of a cycle of CPU execution and IO wait. CPU burst is all followed by the IO burst, and CPU burst distribution is of the main concern. Now CPU scheduler, short term scheduler. As we have discussed in the last lecture that what is a short term scheduler? It selects the processes among in a ready queue and allocates the CPU to one of them. That's why it is also known as the CPU scheduler. Queue may be ordered in various ways. CPU scheduling decisions may take place when a process switches from the running to the waiting state, कि जब हमारे पास CPU शेड्यूलिंग है वो कब होगी, जब एक प्रोसेस क्या कर रही है, स्विच कर रही है रन से वेटिंग स्टेट में, या रनिंग से रेडी स्टेट में स्विच कर रही है, या वेटिंग से रेडी स्टेट में स्विच कर रही है, या प्रोसेस टर्मिनेट हो रही है। शेड्यूलिंग अंडर 1 and 4 इज नॉन प्रीएम्प्टिव, मींस अगर एक प्रोसेस जिसको हमने क्या किया है रनिंग स्टेट में वो चली गई और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाती है, देन इट इज नॉन प्रीएम्प्टिव. All other scheduling algorithms are preemptive. Dispatcher. Dispatcher modules gives the control of the CPU to the process selected by the short-term scheduler. It involves switching contexts, switching to the user mode, and jumping to the proper location in the user program to restart that program. And dispatcher latency, it is the time taken by the dispatcher to stop from one process and start another process. जो एक प्रोसेस से सीपीयू को टेक ऑफ करवाना है और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू अलॉट करवाना है, तो उसके बीच में जो भी टाइम होगा दैट इज नोन एज द डिस्पैचर लेटेंसी. नाउ व्हाट आर द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, व्हाई वी यूज द सीपीयू शेड्यूलिंग. तो बेसिक criteria of CPU scheduling is, first one is to enhance or to improve the CPU utilization, to keep the CPU as busy as possible, कि हमारा CPU कभी भी आइडल ना हो, वो हमेशा बिजी रहे. थ्रोपुट, थ्रोपुट का मतलब क्या है, हमारा नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट, मींस एक टाइम यूनिट में कितनी प्रोसेसेस हमारी अब कंप्लीट हो रही हैं उसको बोला जाता है थ्रूपुट. तो थ्रूपुट भी हमारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए. टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या है, अमाउंट ऑफ द टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगा है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम. तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. वेटिंग टाइम,
इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। तो ये भी क्या होना चाहिए हमारे पास, मिनिमम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि एक प्रोसेस जब सिस्टम में एंटर हुई है और उसको फर्स्ट टाइम जब सीपीयू अलॉट हुआ तो उसके बीच में जो टाइम लगा है, जब तक वो क्या थी, पहली बार उसको सीपीयू अलॉट सिस्टम में एंटर होने से लेके पहली बार सीपीयू अलॉट होने के बीच में जितना टाइम वो वेट कर रही है, दैट इज नोन एज द रिस्पॉन्स टाइम। Amount of the time it takes from when a request has been submitted until the first response is produced. Note the output for time here. Means जब उसको पहली बार CPU allot हुआ, then that is known as the response time. Now criteria: maximize the CPU utilization, maximize the throughput, minimize the turnaround time, minimize the waiting time and minimize the response time. ये हमारे क्या है, कुछ criteria जिसके basis पे हम algorithms को choose करते हैं। The first one is a first come first serve scheduling algorithm. जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, कि इसमें हम प्रोसेसेस को जिस बेसिस पे वो आई है उसी बेसिस पे सीपीयू अलॉट करवाते हैं। और ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, मींस अगर एक बार एक प्रोसेस को सीपीयू अलॉट हो गया तो जब तक उस प्रोसेस का कंप्लीट नहीं, सीपीयू यूटिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, तब तक कोई और प्रोसेस उससे फोर्सफुली सीपीयू को डी एलोकेट नहीं करवा सकेगी। मान लीजिए हमारे पास प्रोसेस P1 है, P2 है और P3 है, और ये इनका CPU बर्स्ट टाइम मींस कितना टाइम चाहिए इनको कंप्लीट होने के लिए। इसको CPU बर्स्ट टाइम 24 है, इसका 3 है और 3 है। तो अब बिकॉज, और मान लीजिए इनका अराइवल टाइम था, तीनों प्रोसेसेस 0 टाइम पे सिस्टम में एंटर कर चुकी है। तो अगर हम इसको FCFS के अकॉर्डिंग शेड्यूल करते हैं तो इसका गैंट चार्ट क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है, P1 प्रोसेस आई है, तो हम P1 प्रोसेस को अलॉट करवा देंगे 0 टाइम पे CPU, और ये कब तक इसको CPU अलॉट रहेगा, 24 टाइम तक। यहाँ उसके बाद दूसरी प्रोसेस आई है सिस्टम में, मान लीजिए ये आई थी 1 पे और ये आई थी 2 पे। तो अब सॉरी, तीनों एक साथ आई थी, लेकिन उनमें भी हमारे पास P1 पहले आई, P2 बाद में और P3 बाद में। तो अब देखिए P2 प्रोसेस को कब CPU अलॉट होगा, 24 टाइम पे, और कितने टाइम के लिए, 3 टाइम के लिए, मींस ये कंप्लीट कब होगी, 27 पे। P3 प्रोसेस को CPU कब अलॉट होगा, 27 पे, कितना बस टाइम है इसका, 3, तो मींस ये कंप्लीट कब होगी, 27 प्लस 3 30 के ऊपर। तो इस तरह से वेटिंग टाइम कितना है, आप देखिए P1 को कब CPU अलॉट हुआ, 0 पे, और आई भी कब थी, 0 पे, तो 0 माइनस 0, P1 का कितना है, 0 माइनस 0 0। P2 कब आई है हमारे पास सिस्टम में, 0 पे, कब सिस्टम में लोड हुआ है उसको CPU 24 पे, तो 24 माइनस 0 24। P3 कब आई को कब हुआ है CPU अलॉट, 27 पे, और कब आई थी ये सिस्टम में, 0 पे, तो 27 माइनस 0 0। तो इस तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया इसका, P1 का वेटिंग टाइम प्लस P2 का वेटिंग टाइम प्लस P3 का वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 17। अब मान लीजिए वही प्रोसेसेस किसी और ऑर्डर में आती, कि पहले P2 आ जाती, फिर P3 आती और फिर P1 आती। तो P2 कब कंप्लीट हो जानी थी, 0 पे आई थी तो 3 पे कंप्लीट हो जाती। P3 कब कंप्लीट हो जानी थी, 3 प्लस इसको कितना टाइम अलॉट होना था, 3, तो 6। और उसके बाद P1 आई है तो कब तक कंप्लीट होगी, 6 प्लस 24 30 तक। तो इस तरीके से वेटिंग टाइम P1 का कितना आया है, 6, P2 का कितना है, 3, और P1 का कितना, सॉरी P3 का कितना है, 3, और P2 का कितना है, 0। तो वेटिंग टाइम ऑफ P1 6, P2 0 और P3 3। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया, 6 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 3। और जबकि अगर हम प्रीवियस केस ले, वहां पे एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया था, 17। तो इट इज बेटर देन द प्रीवियस केस। तो FCFS शेड्यूलिंग में बेसिकली क्या है हमारे पास प्रॉब्लम है, कि जो एवरेज वेटिंग टाइम दैट इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू अदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और वन मोर प्रॉब्लम विद द FCFS शेड्यूलिंग इज कन्वे इफेक्ट। कन्वे इफेक्ट का मीनिंग क्या है, द शॉर्ट प्रोसेसेस बिहाइंड द लॉन्ग प्रोसेस। कि अगर हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे थी जो शॉर्ट प्रोसेसेस हैं जिनको CPU कम चाहिए, वो क्या हो, अगर हाई प्रोसेसेस के बाद है तो उनका वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे P2 और P3 को कितना कितना चाहिए था, 3 चाहिए था, और ये किसके बाद पड़ी है, 24 टाइम यूनिट्स के बाद पड़ी है। तो इसी को बोला जाता है कन्वे इफेक्ट, कि ऐसी प्रोसेसेस जिनका वेटिंग टाइम क्या कम है, और अगर वो क्या हो, हाइयर वेटिंग टाइम के, सॉरी हाइयर CPU बर्स्ट टाइम के बाद
उनको सीपीयू अलॉट होना है, तो दे विल suffer from the higher waiting time. It is known as the conway effect. अब सेकंड टाइप है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या एसजेएफ शेड्यूलिंग। तो इसमें नाम से क्लियर हो रहा है कि जिनका वेटिंग टाइम क्या है, सॉरी, जिनका सीपीयू टाइम बर्स्ट टाइम कम है उनको हम सीपीयू पहले लोड करेंगे, और जिनका सीपीयू बर्स्ट टाइम ज्यादा है उनको सीपीयू बाद में लोड करेंगे। इट एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ इट्स नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। कि इसमें हमें क्या होना चाहिए, उस प्रोसेस का नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट पता होना चाहिए। SJF is optimal gives the minimum average waiting time for a given set of the processes। इसमें वेटिंग टाइम क्या होता है, मिनिमम होता है। द डिफिकल्टी, अब इसकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है कि हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम पे प्रोसेस को कितना सीपीयू टाइम चाहिए। अब देखिए एग्जांपल ऑफ SJF, ये 4 प्रोसेसेस थी। मान लीजिए इसका सीपीयू बस टाइम है 6, इसका सीपीयू टाइम है 8, इसका सीपीयू बस टाइम 7 और इसका सीपीयू बस टाइम 3, और तीनों अराइवल टाइम तीनों का हमने मान लिया है 0। चारों प्रोसेसेस सिस्टम में कब एंटर हुई है, 0 पे। अब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको अलॉट होगा, P4 को। क्यों, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम कम है, तो सबसे पहले 0 टाइम पे किसको अलॉट हुआ है, P4 को। और ये कब तक चलेगी, 0 + 3 3 तक। उसके बाद ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इनमें से बाकी बची 3 प्रोसेसेस में से बर्स्ट टाइम किसका कम है, 6 का, मींस P1 का। तो इसको सिस्टम अलॉट हुआ, तो ये कब तक चलेगी, 3 + 6 9 तक। उसके बाद ये भी कंप्लीट। अब किसका सीपीयू टाइम कम है, P3 का। कितना है, 7, और इसको कब मिला है, 9 पे, तो 9 + 7 16 तक P3 चलेगी। और उसके बाद P2 चलेगी कब तक, 16 + 8 24। तो इस तरीके से एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया, देखो P1 का कितना है, P1 सिस्टम में आई थी 0 पे, और कब मिला है उसको, 3 पे, तो 3 - 0 0। P2 का वेटिंग टाइम कितना बनेगा, सिस्टम में कब आई थी, 0 पे, और कब मिला है इसको, 16, तो 16 - 0 16। P3 का वेटिंग टाइम, ये है P0 का वेटिंग टाइम, ये है P1 का वेटिंग टाइम, ये है P2 का, और ये P3 का। P2 का वेटिंग टाइम देखिए क्या है, P2 कब आई है सिस्टम में, सॉरी, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3 एंड दिस इज P4। P3 को कब अलॉट हुआ, 9 पे, और आई कब थी, 0 पे, तो 9 - 0 0। P4 को कब अलॉट हुआ, 0 पे, और आई भी कब थी, 0 पे, तो इसका वेटिंग टाइम 0। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ गया, 4 प्रोसेसेस है, तो चारों का सम डिवाइडेड बाय 4 इज 7। तो इस तरीके से यहाँ पे वेटिंग टाइम क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। अब जो इसकी प्रॉब्लम थी कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, can only estimate the length should be similar to the previous one, then pick process with the shortest predicted next CPU burst। तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर, हमें एक्चुअल में मालूम नहीं होता, लेकिन हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट कितना होगा। और वो किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वेयर टो दिस इज n+1। कि अगर हमें प्रीवियस प्रोसेस का टाइम सीपीयू बर्स्ट टाइम पता था, तो हम नेक्स्ट प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, T n+1 टाउ n+1 के नेक्स्ट प्रोसेस का प्रेडिक्टेड, टाउ का मतलब प्रेडिक्टेड और टी का मतलब एक्चुअल, तो वो कितना होगा, अल्फा इंटू प्रीवियस प्रोसेस का एक्चुअल टाइम +1 - अल्फा इंटू प्रीवियस प्रोसेस का प्रेडिक्टेड टाइम। इसके बेसिस पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस का प्रेडिक्टेड सीपीयू बर्स्ट टाइम निकाल सकते हैं। और अल्फा की जनरली वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, और हेयर वी हैव टेकन इट एज अ 0.5 और 1/2। और जब हमारे पास इसी का प्रीएम्प्टिव की जगह प्रीएम्प्टिव वर्जन आ जाता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसमें क्या है, हमारे पास ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह ही है, लेकिन उस वो क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव था, ये क्या है, प्रीएम्प्टिव है। इसका मतलब इसमें हम सीपीयू किसी प्रोसेस से फोर्सफुली रिमूव करवा सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, सीपीयूज को प्रोसेस अलॉट करेंगे, प्रोसेसेस को सीपीयू अलॉट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर रिमेनिंग टाइम।
कि एक प्रोसेस का कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना रिमेनिंग है, तो उनमें से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को जिनको मिनिमम रिमेनिंग टाइम होगा उसको सीपीयू पहले लोड होगा एज कंपेयर टू अदर प्रोसेसेस। अब देखिए क्या है, मान ली 4 प्रोसेसेस थी P1 P2 P3 P4। P0 सिस्टम में आई है 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे। इसका बस टाइम 8 था, इसका 4 था, इसका 9 था और इसका 5 था। अब देखिए हमें इसको प्रीएम्प्टिव एसजेएफ या एसआरटीएफ बोलेंगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब देखिए 0 टाइम पे सिस्टम में कौन सी प्रोसेस है, P1। तो हमने 0 टाइम पे सिस्टम को कौन सी प्रोसेस दे दी, P1 दे दी। और ये कब तक रही हमारे पास सिस्टम में, हमने 1 टाइम तक दी। इसका बेसिक सीपीयू बस टाइम 8 था, लेकिन ये क्योंकि प्रीएम्प्टिव है तो हम इसको क्या करेंगे, अभी फिलहाल 1 देंगे, क्योंकि 1 पे कौन सी प्रोसेस आ गई है, P2 प्रोसेस आ चुकी है, तो इसको हम 1 पे देंगे। अब 1 टाइम पे सिस्टम में कितनी प्रोसेसेस हैं, एक तो P1 है और एक P2 है। P1 का एक टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो सीपीयू इसका कितना बचेगा बाकी, 7। तो अब एट 1 टाइम द प्रोसेस, देर आर 2 processes in the system, one is P1 जिसका रिमेनिंग टाइम कितना है 7, और दूसरी कौन सी है P2 जिसका रिमेनिंग टाइम है 4। तो अब देखिए इनमें से मिनिमम रिमेनिंग टाइम किसका है, P2 का है, तो हम P2 को क्या करेंगे, सिस्टम अलॉट करवा देंगे। और उसके बाद ये कब तक रहेगा, इसको 1 + 4 5। क्यों, क्योंकि बाकियों का रिमेनिंग टाइम क्या है, इससे अभी ज्यादा है, इसका 9 है, इसका 5 है और इसका 7 है। तो मीन्स अब P2 कंप्लीट हो चुकी है ओवरऑल। और टाइम कितना पहुंच चुका है सिस्टम का, 5। और 5 टाइम पे देखो सिस्टम में P1 भी है, P2 भी है, सॉरी P3 भी है और P4 भी है। अब इनमें से मिनिमम टाइम देखिए किसका है, मिनिमम टाइम किसका है हमारे पास, P4 का है। तो P4 सिस्टम को अलॉट होगी यहाँ पे 5 प्लस कितना टाइम है इसका 5, तो 5 + 5 10, तो ये भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद सिस्टम में कितनी प्रोसेस रहेगी, P1 और P3। इसमें से मिनिमम टाइम किसका है, P1 का, तो हमने इसको P1 को लोड करवा दिया। तो 10 + 7 17, ये भी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद सिस्टम में कौन सी बची है अकेली प्रोसेस, 9, तो 17 + 9 26। अब एवरेज वेटिंग टाइम देखिए, P0 का कितना, P1 का कितना आएगा, P1 पहली बार में 0 था, और यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 तक चली, और यहाँ पे दोबारा उसको सीपीयू कब मिला है, 10 पे मिला है। तो इसका मतलब क्या है, वो कितनी देर के लिए वेट करिए, 10 - 1 9 के लिए। P2 सिस्टम में कब आई थी, 1 पे, और इसको सीपीयू कब मिला है, 1 पे, तो कितना टाइम मिलेगा इसका वेटिंग टाइम, 1 - 1 0। P3 सिस्टम में कब आई है, 2 पे, और इसको कब अलॉट हुआ है, 17 पे, तो 17 - 2 15। P4 सिस्टम में कब आई है, 3 पे, और कब मिला है इसको, 5 पे, तो 5 - 3 2। तो divided by 4, this is average waiting time in shortest remaining time first, or it is also called preemptive shortest job first. नेक्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसका मतलब क्या है, हर एक प्रोसेस के साथ क्या एक नंबर एसोसिएटेड है कि जो उसकी प्रायोरिटी बताएगा। A CPU is allocated to the process with the highest priority। और अगर मान लो 2 प्रोसेसेस हैं, P1 है, 3 प्रोसेसेस हैं P2 और P3। मान लो इसकी प्रायोरिटी हमने सेट कर दी है 1, इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी है 3 और इसकी प्रायोरिटी सेट कर दी है 2। तो जिसका नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी, तो मींस P1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, P3 की है, और उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, P2 की। तो इसके भी हमारे पास 2 वर्जन हो सकते हैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। एसजेएफ इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वेयर प्रायोरिटी इज इनवर्स ऑफ द प्रेडिक्टेड सीपीयू बर्स्ट टाइम। तो एसजेएफ भी क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम ही है। क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रायोरिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके सीपीयू बर्स्ट टाइम के ऊपर। जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है, और जिसका सीपीयू बर्स्ट टाइम कम है उसकी प्रायोरिटी क्या है, ज्यादा होगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी 100 है फॉर एग्जांपल, और उससे पहले बार बार और प्रोसेसेस आई जा रही हैं जिनकी प्रायोरिटी क्या है, कम है, तो इस प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी क्या है 100 है, उसको कभी भी सीपीयू अलॉट नहीं होगा। मींस वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टारवेशन की वजह से स्टारवेशन को
वो प्रोसेस है जो स्टारवेशन की वजह से कभी भी सीपीयू अलॉट नहीं हो पाएगा। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टारवेशन। मीन जो हाई प्रायोरिटी जो लो प्रायोरिटी की प्रोसेसेस हैं उनको सीपीयू नहीं मिलेगा ड्यू टू हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस। इस दिस प्रॉब्लम इज नोन एज द स्टारवेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? एजिंग। कि हम क्या करते हैं, कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद क्या करते हैं, प्रोसेसेस जो उनका सीपीयू जिनकी प्रायोरिटी कम थी उनकी प्रायोरिटी क्या करते हैं रहते हैं, कुछ टाइम के बाद मैनुअली बढ़ाते रहते हैं, जिस वजह से वो स्टारवेशन को की तरफ नहीं जाती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एजिंग। एज द टाइम प्रोग्रेस इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। कि टाइम के साथ साथ प्रायोरिटीज बढ़ाते रहते हैं। अब देख प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, 5 प्रोसेसेस हैं। मान लो पांचों प्रोसेस सिस्टम में आई हैं 0 टाइम पे। दिस इज देयर अराइवल टाइम। ये है उनका बर्स्ट टाइम और ये है प्रायोरिटी। अब देखिए 0 टाइम पे सिस्टम में पांचों की 5 प्रोसेस है, तो पहले किसको अलॉट होगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? सॉरी, किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी? प्रायोरिटी सबसे ज्यादा का मतलब जिसका नंबर सबसे कम है। तो P2 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो सिस्टम किसको अलॉट होगा? P2 को। अब ये नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन की हम बात कर रहे हैं, तो P2 कब तक लेके रखेगी सिस्टम को? बस टाइम तक, P1 तक। उसके बाद ये कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस। अब देखिए एक ये बची, ये बची, ये बची, ये बची। इनमें से किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है? P5 की। तो सिस्टम किसको अलॉट होगा? P5 को। और कब तक? 1 + 5 6 तक। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनमें से प्रायोरिटी किसकी है? P1 की सबसे ज्यादा है। तो कब तक सिस्टम मिलेगा इसको? 6 + 10 16 तक। तो ये भी कंप्लीट है। उसके बाद किसको मिलेगा? P3 को। कब तक मिलेगा? 16 + 2 18 तक। और उसके बाद ये कंप्लीट, और उसके बाद फाइनली P4 को सिस्टम मिलेगा 18 + 1 19 तक। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा इस केस में? 8.2 मिलीसेकंड। अब अगेन है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और RL एल्गोरिथम क्या है? FCFS एल्गोरिथम का ही प्रीएम्प्टिव वर्जन है। कि प्रोसेसेस को जो सिस्टम मिलेगा वो मिलेगा तो FCFS ऑर्डर में ही, लेकिन वो क्या होगा? प्रीएम्प्टिव होगा। इसमें हम क्या करते हैं, हर एक प्रोसेस को कुछ टाइम क्वांटम अलॉट कर देते हैं कि वो प्रोसेस केवल उतनी देर के लिए सीपीयू लेगी, उसके बाद उसको फोर्सफुली सीपीयू को रिलीज करना पड़ेगा और वो सीपीयू उससे नेक्स्ट प्रोसेस को मिलेगा। If there are n processes in the ready queue, then the time quantum is n. Then each process gets 1 by n of the CPU time in chunks of at most q time units. अब देखिए कैसे, इसका एग्जांपल ये है। मान लो 3 प्रोसेसेस थी, तीनों का अराइवल टाइम क्या है? 0 0 0। और यहाँ पे हमने टाइम क्वांटम माना है 4। तो अब देखिए सबसे पहले कौन सी प्रोसेस को सिस्टम अलॉट होगा? FCFS ऑर्डर है तो किसको अलॉट होगा? P1 को। तो P1 को कब तक अलॉट हुआ? 0 से लेके 4 तक। तो मींस इसका CPU बर्स्ट टाइम जो 24 था वो रिड्यूस होकर कितना हो गया? क्योंकि 4 सेकंड इसको मिल चुका है मिली सेकंड, ये कितना हो गया? 20। उसके बाद किसको मिलेगा? P2 को। कितने सेकंड के लिए? 4 सेकंड के लिए। लेकिन इसका ऑलरेडी टाइम कितना है? 3 है, तो ये कब छोड़ देगा सिस्टम को? 4 + 3 7 पे। उसके बाद अगली प्रोसेस कौन सी है? P3। तो P3 को सिस्टम कब मिलेगा? 7 पे। और कितने टाइम के लिए मिलेगा? 4 क्वांटम यूनिट्स के लिए। तो क्या होगा? 7 प्लस, लेकिन इसका ऑलरेडी टाइम क्या है? 3 है, तो 7 + 3 10। उसके बाद ये भी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब किसको मिलेगा प्रोसेस? P1 को। कितनी देर के लिए? 4 के लिए। तो ये कितना मिलेगा? 10 + 4 14। उसके बाद 14 पे सिस्टम में कितनी प्रोसेस है? केवल एक प्रोसेस है, तो अगेन P1 को 4 के लिए मिलेगा 18 18। तो इस तरीके से कब तक चलता रहेगा? जब तक इसके 24 बस टाइम्स कंप्लीट नहीं हो जाते। टिपिकली हाइयर एवरेज टर्न अराउंड देन एसजे बट बेटर रिस्पॉन्स। इसका एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम तो ज्यादा आता है, लेकिन रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसेसेस को जल्दी जल्दी टाइम क्वांटम मिलता जा रहा है FCFS ऑर्डर में। Q should be large as compared to context switch time। इसमें क्या है कि जितनी देर के लिए हम उसको प्रोसेस को CPU दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए? context switch टाइम से ज्यादा होना चाहिए। Q यूजली बिटवीन 10 to 100 मिलीसेकंड, और context switch का टाइम होता है लेस देन 10 माइक्रोसेकंड।
अनदर वन इज अ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसमें बेसिकली क्या है, हमारे पास जो रेडी क्यू है उसको हम डिफरेंट क्यूज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे फोरग्राउंड की क्यूज एंड बैकग्राउंड क्यूज। फोरग्राउंड को इंटरेक्टिव क्यूज बोल देते हैं और बैकग्राउंड को बैच सिस्टम क्यूज भी बोल देते हैं। और प्रोसेस अगर कोई प्रोसेस बैकग्राउंड में है तो वो बैकग्राउंड में ही रहेगी, और फोरग्राउंड में है तो फोरग्राउंड में। ईच प्रोसेस इज परमानेंटली इन अ गिवन क्यू। ईच क्यू हैज इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फोरग्राउंड वालों का हमने फॉर एग्जांपल मान लिया कि राउंड रोबिन शेड्यूलिंग है, और बैकग्राउंड जो क्यूज हैं वो कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग फॉलो कर रही है, एफसीएफएस। शेड्यूलिंग मस्ट बी डन बिटवीन द टू क्यूज। अब क्यूज के बीच में भी हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं। या तो फिक्स्ड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हो सकती है कि पहले क्या सारी फोरग्राउंड की हो और उसके बाद बैकग्राउंड की हो, या फिर क्या है हम उसको टाइम स्लाइस भी दे सकते हैं कि कुछ देर फोरग्राउंड वाली प्रोसेसेस को सीपीयू अलॉट हो और कुछ देर बैकग्राउंड वाली प्रोसेसेस को सीपीयू अलॉट हो। तो जो फिक्स्ड प्रायोरिटी है उसमें क्या हो सकती है, स्टारवेशन आ सकती है। मान लो फोरग्राउंड वालियों को ज्यादा टाइम यूनिट चाहिए सीपीयू के, तो वो क्या करेंगी, उसकी वजह से बैकग्राउंड वाली स्टार हो जाएंगी। लेकिन टाइम स्लैश में क्या होगा, हमारे पास हर एक प्रोसेस को कुछ टाइम यूनिट्स के बाद प्रोसेसर मिलेगा ही मिलेगा, तो देर इज अ नो प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। 20% टू बैकग्राउंड इन द, इसमें क्या देखिए बेसिकली जो टाइम स्लाइस वाली में उसमें हम क्या करते हैं, 80% तो फोरग्राउंड को देते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन और 20% सीपीयू यूटिलाइजेशन फॉर द बैकग्राउंड। अब देखिए हमारे पास जैसे यहाँ पे है, डिफरेंट डिफरेंट क्यूज मेंटेन कर लिए हैं। फर्स्ट क्यू में सिस्टम प्रोसेस है, दूसरी में इंटरेक्टिव प्रोसेसेस हैं, तीसरी में इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस हैं, फोर्थ में बैच प्रोसेसेस, फिफ्थ में है स्टूडेंट प्रोसेसेस। इनकी लोएस्ट प्रायोरिटी है और इनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो ये क्या है, अगर ये फोरग्राउंड है तो ये क्या करेंगे, हमारे पास राउंड रोबिन शेड्यूल में एल्गोरिथम को सीपीयू को अलॉट करवाएंगी, और ये वाली क्योंकि बैकग्राउंड की है तो ये क्या करेंगी, आपस में एफसीएफएस में सीपीयू को अलॉट करवाएंगी। और ये हर एक डिफरेंट रहेगी, हमारे पास यहाँ की प्रोसेस यहाँ मूव नहीं हो सकती इस केस में, इसकी इसमें मूव, मींस ईच ऑफ द क्यू इंडिपेंडेंटली कंप्लीट्स अ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। इसमें प्रोसेसेस मूव कर सकते हैं, ए प्रोसेस कैन मूव, वो थी मल्टी लेवल क्यू और ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। ए प्रोसेस कैन मूव बिटवीन द वेरियस क्यूज, एजिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस वे। इसमें क्या देखिए, मान लो ये स्टार कर रही थी तो इसकी प्रोसेस को हम यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं, यहाँ भी भेज सकते हैं, मींस प्रोसेसेस कैन मूव बिटवीन द डिफरेंट क्यूज, इसीलिए इसको बोलते हैं फीडबैक। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर, नंबर ऑफ क्यूज कितनी है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हर एक क्यू का क्या है, हाउ टू अपग्रेड द प्रोसेसेस, व्हेन टू डिमोट द प्रोसेसेस, कि किस प्रोसेस को कब अपग्रेड करके ऊपर वाली क्यू में भेजना है, किस प्रोसेस को कब डिमोट करके नीचे वाली क्यू में भेजना है, मेथड यूज टू डिटरमिन विच क्यू है प्रोसेस विल एंटर एंड देन प्रोसेस नीड्स द सर्विस। ये भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस क्यू को कब सीपीयू अलॉट करवाना है और कब उससे सीपीयू रिलीज करवाना है। मल्टी लेवल क्यू में देखिए जैसे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट क्यूज थी, तीन हमने क्यूज मान ली हैं, इसको हम राउंड रोबिन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जिसमें टाइम क्वांटम हमें दिया है 8 सेकेंड, इसको भी राउंड रोबिन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं विद 16 टाइम क्वांटम। इसको एफसीएफएस में, और प्रोसेसेस क्या कर सकती हैं, एक दूसरे में मूव कर सकती हैं। So thank you all, this one is all about the today's lecture.